Very good evening to all of you students. Beta, I'm going to do these classes are for the students who are not scoring well, or if you want to join, you can join also. I'm going to do very mole concept. I'm going to start. Okay, I'm going to divide this chapter into two parts. Today I'm going to do two concept. One some we will do on empirical formula, and one we are going to do mole concept. Gay-Lussac and stoichiometry will do tomorrow. Okay. Aram se, because my target audience are the students who are not getting good marks. And secondly, of course, you all also can join because I'm going to do. I'm going to do this numerical and then I'll give you the sum. Okay, right? तो सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट में बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे विल आस्क यू. Okay, here we'll start. Atom. What is an atom, beta? Atom means hydrogen, oxygen. Atomic mass is 1/12 the mass of carbon 12. RAM they will always give you in exam, beta. Hydrogen is, these values will be given, so no need to by heart. Sometimes examiner is very smart. He may change this value. Instead of carbon 12, he may give you carbon 13. So you will take the value which they have given. Don't take your own value. Okay. Now they will tell you to find relative atomic mass. We have done. They will never ask this. We know. Then they will tell you to find molecule. Molecule is union of atom. Now in exam, they will ask you what type of numerical like this. If I tell you find RMM of nitric acid, तो nitric acid का formula क्या है? HNO3. In exam, they will give you this value. H is 1, N is 14, O is 60. तो आप क्या करोगे? पहले write all the different element. H is there, N is there, and O is there. How many time H is there? Only one. N is only one. O is how much, beta? 3. So what you will get? 1 plus 14 plus 3 into 16. So what answer you will get? So this is your RMM. Easy. So this is how we calculate RMM. Then beta, suppose if they give you RMM, if they give you like this. If they tell you find RMM of, okay, ऐसा दे दिया अमोनियम कार्बोनेट. And beta, they will give you this. Nitrogen is 14, hydrogen is 1, carbon is 12, O is 16. तो हम कैसे करेंगे बेटा? N कितना है? पहले अलग अलग एलिमेंट लिखो. N is there, H is there, C is there, and O is there. N is how much? देखो ऐसा कभी भी ब्रैकेट के बाहर if there is 2, so it is how many times? 2 times. ओके, H कितना हो जाएगा? 2 into 4 हो जाएगा ये. So it will become 8. Carbon is given only 1, so you'll write it 1. Oxygen is how much, beta? 3. Then you have to put the values. These values will be always given to you all. Right? Hello. So this is how you calculate molecular mass. Okay. So this has become 60 and this will become a 36 to 96. Easy. The next sum, what they will ask you to do, beta, whenever they tell you dot water, copper sulfate, blue vitriol and dot water. So जब भी बेटा ये dot आता है मतलब you have to add it. They will give you this value. Copper is how much? They will give you all these values. 64, sulfur is 32, oxygen is 16, and H is how much, beta? 1. So what you have to do, you have to write all this. पहले अलग ले लेगा, कॉपर है, सल्फर है और ऑक्सीजन. फिर ये डॉट होता है ना, डॉट वाटर में you have to add them. 5 times water.
वाटर में कौन कौन है? 2H इज देयर एंड 1O। वाटर का वेट हमेशा बेटा 18 होता है, इतना याद रखना। राइट, हियर ऑक्सीजन वाज हाउ मच? 4, दिस वाज 4 ना बेटा। बस ये वैल्यू डाल दो अंदर, यहाँ पे 64, यहाँ पे 32, यहाँ पे 4 into 16, here 5 into 18। Okay, so when you add all this, so what you are going to get? 250. Easy. Now next question. Next question what exam में आएगा बेटा? Find percentage. Find percentage. Suppose मैंने ऐसा बोला, find percentage of carbon and percentage of oxygen in CO2। एंड एग्जाम में ये लिख के दिया रहेगा, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16। तो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट? वेरी सिंपल। फर्स्ट हम लोग पूरे कंपाउंड का मास ढूंढेंगे, RMM ऑफ CO2। तो एक सी है, दो ऑक्सीजन है, वैल्यू दिया है, डाल दो। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इफ यू ऐड दिस? 44। नाउ अभी अपने को परसेंटेज कार्बन का ढूंढना है। कार्बन, कार्बन का परसेंटेज वी हैव टू कैलकुलेट। परसेंटेज ऑफ कार्बन, कितना कार्बन है रे अंदर? एक ही कार्बन है, 1 कार्बन अपॉन पूरा कंपाउंड। पूरा कंपाउंड कौन है अपना? दिस इज द फॉर्मूला। जो एलिमेंट का परसेंटेज बोला है वो कितनी बार है वो ऊपर लिखने का, नीचे पूरा कंपाउंड लिखने का, इनटू 100। राइट, तो 12/44 into 100। फिर बाद में हमको किसका पूछा है बोलो बेटा? ये आप कैलकुलेट कर लेना बाद में। ऑक्सीजन का पूछा है। ऑक्सीजन कितनी बार है अंदर? 2 बार, तो 2 into O अपॉन पूरा कंपाउंड कौन है? CO2 into 100। सो 2 into 16/44 into 100, then you can calculate. Easy. How to calculate percentage? Now we go to the next part. That is next concept. ये आता ही है, बोर्ड में आएगा, 2 मार्क के लिए सम आएगा अभी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। Sir, I have one doubt. यस। Sir, in percentage composition, if they ask like find the water of crystallization in Yeah, very, hydrated very, very, very good CuSO4. question. Beta, now I could have asked you this question. Copper sulfate I have heated, blue vitriol I have heated, and then you get what beta? Copper sulfate and 5 molecules of water. Now in this sum I can ask you, what all thing I can ask you? Find percentage of water, or I can ask you percentage loss of mass. So now you only tell me, dear, how much water molecule we have lost here. Tell me, beta. 5. So 5. Yeah, so my answer will be either if they ask 5 percentage of water or loss of mass, percentage of loss of mass. Both is one and the same. How many water lost? Tell me, beta. 5 molecules. So 5 into water. What was my total? Total compound is what, beta? This, na? C. Yes, sir. So entire into CuSO4 dot 5H2O into 100. Now they will give you the mass of all rest. Water is how much, beta? 18 or not? Tell me. Yes, sir. Copper sulfate hydrated we just now calculated. पूरे का कितना आ रहा था बोल बेटा? ये देख पूरे का। 250. हाँ, तो what you are going to do? Yes, Upon sir. 250 into 100, and you will calculate, you will get 36%. Easy. Yes, sir. Now the next concept we are going to study is molecular formula and empirical formula. Okay, so now let us do this concept. I'll give you a few example and I'll explain you. Okay, there is the first example is benzene. Benzene beta molecular formula. For molecular formula, what word I'm going to use now? MF. For empirical formula, what I'm going to use? EF.
Okay, benzene molecular formula is how much? Molecular formula for benzene is C6H6। अभी बेटा बहुत सिंपल है, ये सम कभी छोड़ना मत, बहुत इजी है, एमसीक्यू में बहुत बार आता है ये। तो पहला क्या करने का भी, एम्पेरिकल फॉर्मूला मुझे ढूंढना है, तो आई राइट यहाँ पे आपको हाउ मेनी एलिमेंट्स यू कैन सी, वन इज कार्बन, वन इज हाइड्रोजन। How many times carbon is there? Six times. Hydrogen is also six times. So now you take the ratio, it will become how much? 1:1। तो ये लास्ट में जो आपको नंबर मिलेगा वो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। तो कार्बन कितना है बोलो बेटा? हाउ मच कार्बन इज नाउ? 1। एच कितना बचा बोलो बेटा? 1। तो दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। एमसीक्यू में मैं ऐसा पूछ सकता हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज दिस, सो व्हाट विल बी इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला? यू राइट CH। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज इफ आई गिव यू ग्लूकोज, इन एग्जाम दे विल टेल यू ग्लूकोज, सो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? C6H12O6। Now, what you will do, beta, to find empirical formula? You write how many different element are there? C है, H है और O है। C रेशियो लेना है अभी इनका। C कितना है? 6 है। H कितना है? 12 है। O कितना है? 6 है। So what will be my ratio? Let us take the ratio. 1:2:1 होगा कि नहीं? So now what will be my empirical formula? C 1 है। H कितना है बोलो बेटा? 2 है कि नहीं बोलो? CH2. Oh, very good. So this is how you get the empirical formula. Clear? Now, suppose if I give you right empirical formula for acetic acid. So first, beta, you should know now what is acetic acid. Molecular formula of acetic acid is छत्रिकू। नाउ अभी छतरी में आप बोलोगे सर विच ऑल डिफरेंट एलिमेंट यू कैन सी? एक सी है, एक एच है और एक ओ है। सी कितना है? हाउ मेनी टाइम्स सी इज देयर? टेल मी। 2। सर 2 बार है। हाँ, ओ कितना है? 2। एच कितना है? 3 एंड 4 बार। 1, 4। वेरी गुड, सो यू टेक द रेशियो। तो ये 2 1s are 2, 2 2 2 और ये 1, तो व्हाट विल बी माय एम्पेरिकल फॉर्मूला? CH2O। Easy. Now suppose if I give you one more example, water। जरूरी नहीं हर बार कट हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाटर का कितना होता है बोलो बेटा? H2O। हमनी H 1H, हमनी O 1O। रेशियो लेगा तो कुछ कट होने वाला है नहीं। अरे बाप रे, मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला भी सेम आएगा कि नहीं बोलो? तो जरूरी नहीं है कि बेटा मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फॉर्मूला चेंज ही होना चाहिए। अगर कुछ कट नहीं होगा तो वो सेम होगा। क्लियर? अब बेटा आ जाते हैं। अभी बेटा हम लोग ने क्या क्या एग्जाम्पल किया, देखो हम लोग ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ा, यहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूला। सबसे पहले हम लोग ने बेंजीन किया था, बेंजीन का कितना था? C6H6। और एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना मिला था? CH। ग्लूकोज का हमने किया था C6H12O6, हमको कितना मिला था? CH2O। एसिडिक एसिड का भी जाने दो, एसिडिक एसिड का, वाटर का किया, वाटर का कितना था एम्पेरिकल फॉर्मूला? अब आप मुझे बताओ ना बेटा, अगर मुझे ना इसको इसमें कन्वर्ट करना है भाई, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोलो? 6 6 से। इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 6। सपोज बेटा अगर मैंने एसिटिक एसिड लिया रहता, एसिटिक एसिड में क्या था अपना? C2 था। H कितना था बोलो बेटा? 4 और O2 था। और हमको यहाँ पे क्या मिला था? CH2O। इसको मुझे इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा तो किससे मल्टीप्लाई? अरे यहाँ 2 पे तो 1 ही 2 आएगा, और यहाँ पे 1 आएगा ना वाटर में। यहाँ पे कितना आएगा? 2 2। 2। अब बेटा आप मेरे को बताओ, यहाँ पर आपने देखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला, मुझे कोई तो एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि नहीं? हाँ। और ये नंबर बेटा हमेशा होल नंबर है, फ्रैक्शन होगा क्या? तो इसको हम लोग ने एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये समझा? ठीक है।
अभी आपको मैं दो तीन चीजें बोलता हूँ, वो फिलहाल बाय हार्ट रखो। आपको खाली मैं ये फॉर्मूला दे रहा हूँ, वो आपको बाय हार्ट रखना है बेटा। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये प्रूव किया कि नहीं हमने? अब आप बोलोगे सर ये अगर एन कैसे ढूंढने का, एन कैसे ढूंढने का? तो एन का फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर वेट आर एम एम अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला का वेट। ठीक है, ओके। अभी आपको एक नया टर्म पढ़ना है, वेपर डेंसिटी। वो क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, पहला फिलहाल याद रखो। कभी कभी आरएमएम नहीं दिया रहेगा, तो आरएमएम इज इक्वल टू व्हाट? 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। चलो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बोलो? एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एन क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। एंड व्हाट इज आरएमएम? आरएमएम इज 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ओके, अभी मैं बेटा ये यहाँ पे डाल सकता हूँ कि नहीं बोलो बेटा? ओके, ये देखना बेटा, आरएमएम की जगह पे मैं लिख सकता हूँ कि नहीं 2 इंटू वेपर डेंसिटी इसमें। तो एन का वैल्यू में देखना, ये यहाँ पे मैंने डाला तो क्या मिलेगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी पर एम्पेरिकल वेट। अब आपको एग्जाम में सम कैसे आएंगे इसके ऊपर, वो मैं तुमको बताते। पहला एकदम बेसिक सम बताता हूँ। अभी आपको एग्जाम में ना ऐसा सम आएगा, सुनो। आपको कभी बोलेंगे फाइंड आर एम एम, फाइंड आर एम एम इफ वेपर डेंसिटी इज 20, तो क्या करोगे बोलो बेटा? बोलो ना। 2 आर into एम एम AD. इज इक्वल टू वॉट? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। क्लियर है? इजी, राइट। कभी कभी आपको आरएमएम देगा और वेपर डेंसिटी बोलेगी ढूंढने के लिए। फाइंड वेपर डेंसिटी इफ आरएमएम इज 80, तो क्या करोगे? RM upon 2. तो आरएमएम का फॉर्मूला क्या है अपना बोलो बेटा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। therefore वेपर डेंसिटी विल बी हाउ मच बेटा? आरएमएम अपॉन 2। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? 80/2, सो दैट इज 40। इजी। नेक्स्ट, अभी आपको इसमें बेटा एक सम पूछेंगे बेटा। अभी देखो मैं तुमको एक सम बता देता, चलो आ जाओ। चलो, बॉम्बे स्कॉटिश के पेपर का ही सम बता देता हूँ, ये आप कैसे करोगे। चलो आ जाओ, दिख रहा है ये आप लोगों को? ये वाला सम करो, सिक्स्थ वाला एमसीक्यू। चलो क्या लिखा है बोलो? एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना दिया है देखो ना, PQ2। ओके, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ PQ2 इज हाउ मच बेटा? 10। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है बोलो? 30। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोला है ढूंढने के लिए। चलो बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे ढूंढते बोलो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्या था बोलो? अरे बोलो, एन इंटू एम्पेरिकल। अभी आपको क्या ढूंढना पड़ेगा बोलो बेटा सबसे पहले? Empirical formula. एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला तो दिया हुआ है, दिख रहा है कि नहीं? अरे Yes, बोलो ना, sir. एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है कि नहीं? And yes, sir. अभी आपको क्या करना है बोलो ना? वो तो आप बताओगे ना सर। And अभी आप ढूंढना. थोड़ा दिमाग लगाओ ना बेटा, अपने को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढने का ये तो पता है। अभी अपने को क्या ढूंढना पड़ेगा? एन ढूंढना पड़ेगा कि नहीं बोलो? हाँ सर। अच्छा, एन का फॉर्मूला क्या था सर बोलो? एन इज ई एफ एम अपॉन एम एफ अरे एमएफ है आर एम एम। नहीं, आर एम MFM एम। upon RMM upon EFM. हाँ, RMM अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अभी देखो आरएमएम दिया है यहाँ पे, देख बेटा, दिया है ना? कितना दिया है? 30. 30. 30। 30। अच्छा, एम्पेरिकल मास कितना दिया है? 10. 10। उई अम्मा, तो ये कितना आ गया? 3। तो भी यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो बेटा? 3। एन का वैल्यू 3 आया कि नहीं बोलो ना? P3Q6.
तो अभी क्या डी। करेंगे? P इंटू थ्री, थ्री थ्री इंटू, ये देख नहीं, PQ टू था कि नहीं बोलो, ये तो दिया था ना भाई मेरे। तो P3 हो जाएगा, Q2 इंटू थ्री, सिकस। तो आंसर कौन सा मैच होता है? डी फॉर डॉग, कुतरा। वाह वाह, इजी। ए थ्रिशा, ये हम लोग ने सम कभी नहीं किया था, आया क्या तुझे? हाँ सर। इजी ना? हाँ जी, समझ में आ रहा है जी? क्लियर है? अभी बेटा एक जो टेबल वाला सम आता है वो मैं बताता हूँ। हमेशा एग्जाम में एक टेबल वाला, एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला ऐसा सम आता ही है जनरली, अगर आप देखोगे तो। मैं इसमें ढूंढ लेता हूँ, इसमें नहीं है तो फिर मैं तुमको खुद से करा। अच्छा बेटा, अलग अलग क्वेश्चन है ना बेटा, त्विशा मैं पेपर भेज रहा हूँ विद सोल्यूशन, वो देखो बेटा, तो उसमें आपको पता चलेगा। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो उसमें मैंने सोल्यूशन के साथ सब मैं भेज रहा हूँ। क्लियर है? देख अभी बेटा, ये वाला सम हमने कभी नहीं किया था। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ क्या बोला है? फॉस्फोरस। और वो लोग ने ये दे दिया है, तो कैसे करोगे बोलो? परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस पूरे पहले में कितना? आर्गन ढूंढेंगे। कितना फॉस्फोरस है पूरे में? 6। छह कैसे पे झिंगे? पी और बाहर ऐसा, अरे मैं वो दो, टू 31, हाँ सॉरी। फॉस्फोरस। और पूरे कंपाउंड का नाम क्या 62। है? ये देख, इंटू 100 करना है। और देखिए वैल्यू सब दे दिया, एच का वैल्यू दिया है, पी का वैल्यू दिया है, ओ का दिया है, कैल्शियम का दिया है। कर पाओगे? यस सर। अरे यस बोलो सर। ना। पहले इसका RMM ढूंढ यस सर। पाओगे? कितना यस सर। चिंदी है बोलो भाई? यस सर। तो ऐसे समझाते हैं ओ भाई। इसमें नहीं है तो डोंट वरी, अपने पास होलसेल में पेपर है, टेंशन लेने का नहीं। अपन क्या ले लेते हैं? विबग्योर को ले लेते हैं भाई, विबग्योर का पेपर। विबग्योर के पेपर में अभी अपने को परसेंटेज वाला कोई समय तो मैं देखती है। नहीं होगा तो मैं एक तो कॉमन सम आपको पहला मेथड बता देते हैं पहले, ठीक है ना? परसेंटेज वाला सम कैसे करने का, डायरेक्टली एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर वाला। वहीं 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 कुछ नहीं है, इधर पे, इधर पे नहीं है, इधर पे नहीं है, इधर पे नहीं है, कोई अम्मा नथी। कहाँ पे तो था, मैंने देखा था एक। सर हमारे पेपर में है। हाँ ये रहा, ये देवी और सज्जनों आपकी आंखों के सामने ये रहा सम। कैसे करोगे? ये वाला सम आपको दे दिया है, और आपको क्या बोला है? एटॉमिक वेट सबका दे दिया है, और आपको क्या बोला है ढूंढने के लिए? एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या बोला है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो कैसे करोगे बेटा? इतना वाला टफ वाला नहीं है तुम्हारे स्कोप में, ठीक है ना? एक मैं आपको बेसिक सम बता देता बेटा, ठीक है ना? बेसिक सम बताता हूं ना बेटा पहले। चलो आ जाते पहला, फिर बेटा हम लोग वो वाला सम करेंगे बेटा, ठीक है ना? पहला मेरे को क्या बेसिक सम तो बताने हो, तो वरना आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, अटैक आ जाएगा। पहला बेसिक सम करने का, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आ जाओ। ये बेटा है, अरे बेटा बहुत सारे पेपर में है भाई, कितना पेपर में करेगा? ले भाई, तेरे को EVM का पेपर में करने का है, ले भाई। वो सब मैं पहला एक बेसिक तो करवाने दो मुझे, फिर मैं वो EVM का वो भी सम करूंगा ना। पहला मैंने मेरा वाला एक बेसिक सम देख लो आप लोग। चलो बेटा, अभी एग्जाम में आपको ना ये परसेंटेज इस वाला कैसा सम आता है वो मैं तुमको बता देता। आपको ना ऐसा लिख के दिया रहेगा, देख बेटा, पहला एक कॉन्सेप्ट समझेगा तो तुम अप्लाई करना है बेटा, वो हम लोग अप्लाई करेंगे ना। देख, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा दिया है, वो ढूंढने को बोला है। परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया है और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। पहला रूल नंबर 1, टोटल जितने भी बंदे दिए हैं क्या वो मिलकर 100 हो रहा है? देखो, क्या टोटल 100 हो रहा है? तो अरे परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को ऐड करो, कितना है? 40 प्लस 6.6, तो कितना आएगा? 46.66। क्या ये 100 है? अगर ये 100 होता तो हम लोग कुछ नहीं करते, मतलब कार्बन और मतलब और कुछ नया नहीं ढूंढते। अगर 100 नहीं है तो मतलब देयरफॉर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कभी भी याद रखना, अगर टोटल 100 नहीं होगा तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा।
अच्छा, कभी कभी क्या होता है, आप ऐड करोगे तो 99 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा तो ऑक्सीजन मत लिखना, कभी 101 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा तो मत करना। अगर टोटल 100 नहीं है, ओके, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन कैसे ढूंढने का, 100 माइनस ये, तो अपने को क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। अब देखो बेटा, वो लोग कार्बन और हाइड्रोजन का वेट दिया रहेगा और ऑक्सीजन का अपने को पता है 16, वो भी देते वो लोग। तो अभी हम लोग को ये सम कैसे करने का बेटा, बहुत इजी सम होता है ये, फुकट मार्क्स है इसके, फुकट मार्क्स है, एकदम फुकट मार्क्स है, ठीक है, एकदम फुकट मार्क्स है। चलो, अभी हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। पहले देख, अलग अलग एलिमेंट कौन था बोलो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमने ढूंढा, तो देख ऐसा लिखने का, ये टेबल बना लेगा पहले, देख लो टेबल में हम लोग पहले क्या लिखेंगे, एलिमेंट कौन कौन था बोलो, एलिमेंट कौन कौन था बोलो, कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन नहीं दिया था, लेकिन हम लोग को पता चला, क्यों क्यों ऑक्सीजन लिया हमने, बिकॉज टोटल 100 नहीं था। फिर परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कार्बन का दिया हुआ था, ये भी दिया होता, ये हमने ढूंढा, वी कैलकुलेटेड दिस। एटॉमिक वेट ये दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था। अब हमको क्या करने का, सुनो अच्छे से प्लीज, ये परसेंटेज और इन दोनों को डिवाइड करने का, तो 40/12 किया कि नहीं, देखो दिस डिवाइड बाय, इसको कहते हैं एटॉमिक रेशियो, इसको इससे डिवाइड किया, दिखाई दे रहा है, फिर इसको इससे डिवाइड किया, दिखाई दे रहा है, ये लिखा है ना, देखना, परसेंटेज कंपोजिशन अपॉन एटॉमिक वेट। अब बेटा ये काम, इसका मैंने आंसर ढूंढा, मुझे मिला 3.33, इसका मुझे कितना मिला 6.66, इसका मुझे कितना मिला 3। अब क्या करने का देखो, ये जो आंसर मिला इसको यहां पे रिपीट कर दो, फिर इसमें से तीनों में सबसे छोटा कौन है, हु इज द स्मॉलेस्ट, 3.33 या 6.66, 3.33 ना, तो स्मॉलेस्ट वाला तुम्हारा बेटा, ये सब नंबर को स्मॉलेस्ट से डिवाइड करने का, देख रहे हैं। सपोज यहाँ पे अगर मुझे 2.22 आया रहता तो मैं सबको किससे डिवाइड करता, 2.22, 2.22, 2.22, आर यू गेटिंग इट। तो ऐसे हम लोग करते हैं बेटा उसको। तो अभी बेटा ये डिवाइड किया और मेरे को आंसर कितना आएगा यहाँ पे, 121। अच्छा, जरूरी नहीं है हमेशा ये होल नंबर आए, जरूरी नहीं है ये हमेशा होल नंबर आए, कभी कभी ये बेटा है ना क्या हो सकता है, ये देख। अच्छा, तो आप बोलेंगे सर ये नियरेस्ट होल नंबर क्यों लिखना पड़ा, यहाँ पे तो 1 का 1 ही होता है, 2 का 2 ही होता है, दिख रहा है कि नहीं। कभी कभी हम लोग सम करेंगे तो बेटा ऐसा हो सकता है हमें आंसर ऐसा 1.1 आए, तो 1.1 को मैं अप्रोक्सीमेटली 1 लिख दूंगा। कभी हो सकता है मुझे 2.9 आएगा तो मैं उसको अप्रोक्सीमेटली 3 लिख सकता हूं। तो आप बोलोगे सर कितना तक नेग्लेक्ट करने का, प्लस और माइनस 0.2 तक नेग्लेक्ट करने का, प्लस और माइनस 0.2 तक हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी कोई बोलेगा सर मेरे को अगर 1.5 आया तो, 1.5 आया तो, बेटा सपोज यहाँ पे मुझे 1.5 आया होता तो मैं 0.5 को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ताकि मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 3। होल नंबर मिला कि नहीं बोलो। लेकिन बेटा अगर आपने गलती से भी इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो बाकी सबको भी 2 से करना पड़ेगा, क्लियर है। अब बेटा यहाँ पे मुझे कितना आया, 1 2 और 1। सर हाँ बोलो। सर 0.5 से ऊपर हुआ तो राउंड ऑफ करने का, और नीचे हुआ तो भी राउंड ऑफ कर देने का ना। नहीं, 1.6 को तू राउंड ऑफ नहीं कर सकता है ना बेटा, तो 1.6 होता तो तू क्या करता, 2 से मल्टीप्लाई करता, तो तुझे आंसर कितना आता बोल, 3 3.2। पॉइंट। हाँ, तो विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3। तो राउंड ऑफ कभी कर सकते हैं। राउंड ऑफ मैंने तेरे को क्या बोला, प्लस और माइनस 0.2 रहेगा तो करेगा तो। अच्छा। ओके। मतलब अभी 5.2 है तो तू क्या करेगा, 5। ओके, अच्छा। 1.8 है तो क्या कर देगा, 2। सपोज, समझा क्या। हाँ वन सर। 1.3 आता तो क्या करता, तू नहीं कर सकता है, तो इसको तू किससे मल्टीप्लाई करता, 3 से, तो कितना होता 3.9, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 4। यस अद्वैत बेटा, टेल मी व्हाट इज योर डाउट। सर हम्म हमें स्कूल में बोला था कि अबव 0.5 को राउंड ऑफ नहीं कर सकते। तो नहीं कर रहे हैं ना, तो कहाँ किया राउंड ऑफ किया हम लोग। नहीं मतलब अबव 0.5, अगर वो 2.8 और 2.9 भी है तो पागल है yes। क्या, पैक 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 पैक, 2.9 हो उसको राउंड ऑफ ही करना पड़ेगा, कैसे करेगा तू,
ठीक है सर। हाँ और नहीं, हमें बोला था कि बिलो 1.5 होगा तो बिलो 1.5 होगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर अबाव 1.5 राउंड ऑफ करना है। पागल है बेटा, ऐसा नहीं होता है बेटा, समझा कि नहीं? यस कुछ भी दिमाग है कि नहीं? मेरे को बता, तू 1.6 को क्या तू राउंड ऑफ करेगा, 2 करेगा? सर, हमें बोला था। ऐसा कुछ नहीं होता है, पागल के जैसा। ये तुमको जितना बताया उतना करो, ठीक है? हम्म। कोई भी सम ले ला, मैं लेके आ, मैं तेरे तू करके बता, ऐसा राउंड ऑफ करके तुम्हारा स्कूल के स्टाइल से नहीं कर पाओगे। बस अभी क्या मिला, सी, अभी ये जो आंसर मिला ना एंड का टेबल में जो कॉलम में आता है, ये तुम्हारा कार्बन कितना है बोलो? 1। एच कितना है? 2। तो देख, CH2O। अब हम लोग एक है ना पेपर का सम सॉल्व करते हैं, आ जाओ ना। विबग्योर का था, किसका था बेटा? विबग्योर वाला नहीं, अपने पास और भी है ना बेटा, टेंशन का को ले जाए, ये टेंशन नहीं लेने का बेटा। ईवीएम का ले, प्रीलियम का वेस्ट का करते हैं, वेस्ट का तुम लोगों ने जो नहीं किया वो। आ जाते हैं देवी और सज्जनों, ये लो। परसेंटेज किधर है रे? मर गया क्या परसेंटेज? इसमें है कि नहीं? लो कर लो बात, दिया ही नहीं है परसेंटेज। Oh, yo, man, they have given now. Look, this, how you are going to do? 4.8 कार्बन है और ब्रोमीन है रे राजू, कैसा करेगा मैन बोलो? अरे बोलो रे बाबा। सर हम उनके एटॉमिक वेट से इंडिविजुअली डिवाइड पहला करेंगे उन्हें। टोटल करने का बेबी, टोटल करो। 100 हाँ आता सर, है? 100 आ रहा है। ओ माय गॉड, ये तो सांभर सांभर आला। तो पहले कौन था? कार्बन था और ब्रोमीन था, तो मतलब यहाँ पे वो ऑक्सीजन होने वाला है क्या? नहीं। नहीं। कार्बन 4.8 है और ब्रोमीन 95.2 है। कार्बन का एटॉमिक वेट दिए ला है, इसका भी दिए ला है। अब हम क्या करेंगे? 4.8 डिवाइड बाई 12, 95.2 डिवाइड बाई 80, क्या आएगा? बोलो ना, चलो फटाफट, में टाइम वेस्ट नहीं करता। इसका तो आ जाएगा ना आपको 0.03, पहले वाले का। अरे पॉइंट बोल। फोर ना। 12 पॉइंट का, 12 फोर के टेबल में 4 था, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे यार क्या हो गया, मेरा मैथ्स, माय मैथ्स इज सो वीक ना ब्रो। I didn't go for abacus and all man. चलो 4.8 डिवाइड बाय क्या आ गया तुम्हारा? 12 आ गया। ए, मैंने क्या डिवाइड किया? सॉरी। सर 0.4 आएगा। अरे एक नंबर बेटा, वेरी गुड, आंखों में आंसू आ गए। फिर 95.2 को डिवाइड बाय क्या करेंगे? 80। तो कितना आ रहा है मुझे? 1.2 आ रहा है अप्रोक्सीमेट, 1.19 तो अप्रोक्स। अभी दोनों में कौन, अभी ये दोनों लिख लो, कौन छोटा है बे? 0.4। तो दोनों को किससे डिवाइड करेगा मैं? 0.4। 0.4। नहीं, यहाँ पे मेरे को 1 आ गया, यहाँ पर मेरे को कितना आ गया? 3। 3। बरोबर ना? तो मेरे को ये थ्री। एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया, देयरफॉर ये एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना हो जाएगा? CBr3। हाँ, CBr3। अब अपने को और भी बोला है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया, अभी वेपर डेंसिटी दिए ला है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोला है ढूंढने को राजू, बोलो। 2 into vapor density। तो पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे? RMM। RMM क्या है? 2 into vapor density। हाँ, तो 2 यहाँ पर है। वेपर डेंसिटी कितना है? 252। 252। तो ये कितना हो जाएगा? 504। अब अपने को क्या करने का है बोलो? एन ढूंढना पड़ेगा कि नहीं, बोलो ना। हाँ सर, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट ढूंढना पड़ेगा। हाँ, तो अभी देखो बेटा, अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी अपने को देखो, RMM मिल गया, अभी मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट ढूंढ सकता हूँ कि नहीं? हाँ एम्पेरिकल सर। फॉर्मूला वेट CBr3 है, एक C है, तो 3 आंसर है। ब्रोमीन है, एक कार्बन का 12 और ब्रोमीन का कितना दिया है राजू? 80 दिया है हम लोगों ने सब में। तो 12 प्लस 3 इंटू 80 कितना होता है बोलो? 252। 240। 240 और 252। 252। देयरफॉर अभी मैं एन ढूंढ सकता हूँ, एन का फॉर्मूला क्या बोलो? RMM अपॉन, अपॉन EFM। हाँ। 2 आएगा, 2। अरे एक नंबर। बरलिया व्रज ब्रो, टेल मी।
सर एन का डायरेक्ट फॉर्मूला ले सकते हैं ना, 2 × BD/E कर एम एफ। सकते बेटा, हम लोग बेबी स्टेप कर रहे हैं बेटा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं बेटा, वेरी गुड, लेकिन हम तो लोग ने बेबी स्टेप। ठीक है सर। N2 आ गया कि नहीं बोलो? हाँ सर, तो C2Br हाँ 6। सर। हाँ, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो 2 × CBr3, तो टू C C2 C2Br6। Br6 आ गया क्या बोलो? यस सर। हेलो। यस सर। इजी लग रहा है? यस सर। हाँ ठीक सर। है, अभी देखो वो लोग ने ये मैं बताता, ये लोग ने अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मिक्स कर दिया था। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन बाय विच एक्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथेन। तो मतलब हम लोग को क्या था, इथेन था। अभी हम लोग को आंसर कितना मिला बोलो? C2Br6 मिला के नहीं? तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया बोलो बेटा, याद आ रहा है? 6 के 6 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किससे? ब्रोमीन से, याद आ रहा है? ब्रोमिनेशन। हाइड्रोजनेशन। हेलोजिनेशन। हाँ, तो टाइप ऑफ रिएक्शन बोला वो हैलोजिनेशन। लोग ने। हेलोजिनेशन। हाँ, ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन डालेंगे, ब्रोमिनेशन। समझ में आ गया ना? या सब्स्टिट्यूशन भी लिख सकते थे। क्लियर है? यस सर। कैसा ऑर्गेनिक हाँ सर। केमिस्ट्री के साथ इसको मिक्स किया? तो बेटा ये हो गया अपना क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला की कहानी खत्म, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की कहानी खत्म। ऐसे सम आएंगे तो प्लीज छोड़ना मत एग्जाम में। अब मैं आपको बता देता हूं, नया कॉन्सेप्ट है, वो है वेपर डेंसिटी क्या होती है। वेपर डेंसिटी क्या होती है? और ग्राम एटम, पहले ग्राम एटम बता देता हूं। ग्राम एटम अच्छे से सुन लो बेटा, ग्राम एटम क्या है बोलो? ग्राम एटम क्या होता है? सही। गिवन मास ऑफ एटम अपॉन रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, अभी मैंने आपको सम बोल दिया, सम बोला ढूंढने के लिए। ग्राम एटम इज व्हाट गिवन मास अपन, मैंने ऐसा बोला। फाइन ग्राम एटम, चलो ये फॉर्मूला आपको पता है ना अभी। चलो ग्राम एटम ढूंढो। फाइन ग्राम एटम इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्या करोगे बोलो? गिवन मास कितना दिया मैंने बोलो? 16। अभी नहीं, क्या 8 8 गिवन 8 8 मास? 8 8 8। 8। और रिलेटिव एटॉमिक मास भी दिया रहेगा एग्जाम में। 16। 68 कैसे? 16 भाई। 16 ही बोला। तो कितना हो जाएगा? 0.5 ग्राम एटम, समझा? हाँ सर। क्लियर है? ग्राम एटम का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन रिलेटिव। तो गिवन मास ऐसा सब में दिया है कि नहीं बोलो? तो देख बेटा, गिवन मास अपॉन आ रहे हैं। अच्छा, अभी मॉलिक्यूलर, ग्राम मॉलिक्यूल पूछेंगे। क्या पूछेंगे? ग्राम मॉलिक्यूल। तो क्या करोगे बेटा? फॉर्मूला सब सेम रहेगा ऊपर, लेकिन क्या आएगा? गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल अपन आरएमएम आएगा। और आरएमएम बेटा आ रहा कोई है। भी सब में हाइड्रोजन लिखा रहेगा तो H2 होता है मॉलिक्यूल। हाँ। ऑक्सीजन दिया रहेगा तो हम लोग O2 लेने का। नाइट्रोजन दिया रहेगा तो हम लोग क्या लेंगे? N2। क्लियर है? चल, यस सर। तो अभी बेटा ये लोग ने क्या बोला? फाइन ग्राम मॉलिक्यूल इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो गिवन मास कितना दिया बोलो? अरे गिवन मास 16 ग्राम। 16 दिया है, तो यहां पर हम लोग लेंगे 60। आरएमएम क्या लेंगे बेटा? यहाँ पे ऑक्सीजन है तो 32। हाँ, तो ये 2 ऑक्सीजन होगा, याद रखना। तो 30। क्लियर है? बरोबर, राइट। अब बेटा हम लोग आ जाते हैं बेटा कहां पर? आवो गधेड़ो। जैसे मैं 1 डजन बोलता हूं, 1 डजन बोलेगे बेटा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? व्हाट शुड कम इन योर माइंड? 12। 1 डजन पेन बोला मतलब कितना पेन? 12 पेन। 1 डजन अगर मैंने बोला एप्पल, तो हमने एप्पल 12। जैसे डजन रिप्रेजेंट 12, वैसे एवोगैड्रो नंबर विल रिप्रेजेंट 6.023 इंटू 10 मतलब जब भी मैं एवोगैड्रो नंबर बोलूंगा तो आपके दिमाग में ये नंबर आना चाहिए। जैसे डजन बोलता तो 12 आता है कि नहीं, वैसे एवोगैड्रो नंबर बोलेगा तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए। ठीक है, अब सुनो। मैंने बोला एवोगैड्रो नंबर ऑफ पेन, तो कितना पेन? 6.023 इंटू 10⁻23। मैंने बोला एवोगैड्रो नंबर ऑफ फोन, तो कितना फोन? 6.023 इंटू 10⁻23। समझ में आ रहा है? क्लियर हाँ है? सर। अच्छा, अब बेटा ना एक रिलेशन है, ये आपको दिमाग में फिट करना है।
कोई भी चीज का अगर मैंने आपको ना ऐसा लिख के दिया 1 मोल, ये दिमाग में डाल दो, 1 मोल, 1 मोल बोला, 1 मोल इज इक्वल टू, आप बोलेगे ट्रिपल लाइन क्यों डाला, करस्पॉन्ड्स बोलते हैं, इक्वल टू याद रखो। 1 मोल मैंने पेन दिया आपको, तो आप उसका वजन करने का, तो इट विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट। अब मैं 1 मोल के अंदर काउंट करूंगा, मुझे हमेशा कितनी सारी पेन नजर आएगी, 6.023 इंटू 10⁻23। उसको अगर बेटा मैं एक बॉटल में भर दूंगा तो कितना, वो 1 मोल को बॉटल में भरूंगा तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, 22.4 लीटर। और 22.4 लीटर और डीएम क्यूब सेम होता है, और 22,400 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी। मैं उल्टा भी बोल सकता हूं, मैंने अगर आपको 22.4 लीटर कोई गैस दिया है तो उसके अंदर आपको कितने गैस के मॉलिक्यूल नजर आएंगे, बोलो उल्टा जाओ, कितने मॉलिक्यूल नजर आएंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। अभी आप उसको खाली कर दोगे, उसका वजन निकालोगे, जो कितना वेट मिलेगा, मॉलिक्यूलर वेट। और वो सब मिलके कितना मोल बनेगा, 1 मोल। अभी आप बोलोगे सर कुछ एग्जाम्पल दो ना, तो मैं एग्जाम्पल देता हूं ना। अभी आप सपोज बेटा, मैंने अगर आपको ऐसा दिया रहता, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ H2, तो 1 मोल कितना होता है बोलो, मॉलिक्यूलर वेट। तो कितना है मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का, 2H है, तो कितना हो जाएगा, 2 × 1, तो 2 ग्राम्स। अब मैं इसके अंदर काउंट करूंगा, मुझे कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नजर आएंगे, बोलो 1 मोल लेता तो कितना नजर आना चाहिए था, तो इतने सारे मुझे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे, मॉलिक्यूल। ए इसके अंदर एटम कितना होगा बोल बेटा, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है, 2 है ना। तो अगर मैंने एटम पूछा रहता तो मैं क्या लिखता, 2 × 6.023 इंटू 10⁻23 H एटम। अब बेटा इतने सबको मैं एक डब्बे में भर दूंगा, इसमें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को, तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, एसटीपी पे 44.8 लीटर्स। 22.4 लीटर्स और डीएम क्यूब। समझ में आ गया, एट एसटीपी। देखो बेटा यहाँ पे एग्जांपल देते हैं। तो सर हाँ तो टू कभी करने का, 2 × 6 हाँ, पॉइंट जीरो अच्छा टू अच्छा, मेरे को बता, ये क्या था, मैंने अभी लिया था हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था ना, ये मॉलिक्यूल था। अच्छा हाँ ओके अच्छा इधर समझो। एटम कितना है बोल बेटा। 2। हाँ, सपोज बेटा मैंने तेरे को बोला 1 मोल, मेरा एक ही हाथ है, 1 मोल ऑफ दिस हैंड, तो कितना मेरा हाथ आएगा, 6.023 इंटू 10⁻23। लेकिन मैंने बोला कितनी उंगलियां है, हाँ तो क्या होगा, तेरा एक हाथ तो तेरा 6.023 था, उसमें उंगली अगर तेरे को हाँ टोटल गिना है तो 5 फाइव इंटू इंटू सिक्स हाँ ओके। इजी। मैंने बोला मेरा मुंडी 1 मोल है, 1 मोल है, 1 मोल में मतलब कितनी, 1 मोल है पूरा, या राइट ना बेटा। तो हमने फेस 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23। लेकिन मैंने बोला आंख कितना है इसमें भाई, तो किससे मल्टीप्लाई करेगा बोल, 2 × नाक कितना बोलेगा तो किससे मल्टीप्लाई सिक्स करेगा, पॉइंट जीरो 1। टू नहीं 1 से। हाँ कान 1 कितना है बोलेगा तो कितना करेगा, 2 दांत कितना है बोलेगा तो किससे मल्टीप्लाई करेगा। 32। ओके, एनीवेज, अब समझा बेटा। अभी चलो और एक एग्जांपल देता हूं, चल आ जाओ ना। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोला है बेटा, तो इसका मोलिकुलर मास हम लोग पता कर सकते हैं कि नहीं बोलो बेटा, देख ना 1 मोल कितना होगा बोलो, तो कार्बन का 12, इसका कितना होता था, तो कितना होगा 44। कितने कार्बन डाइऑक्साइड है रे अंदर, अरे बोलो ना, CO2 मॉलिक्यूल। लेकिन अगर मैंने बोला सी कितना है, सी एटम कितना है बोलो, एक। हाँ, एक है ना, लेकिन एक तो एक है तो क्या करेगा, लेकिन तू कैसा लिखेगा, 1 × 6.0। 1 × 6। समझा ना, ये मेरा मुंह था, सपोज आपका मुंह है, मैंने बोला आपके मुंह में मुंह है, तो नाक कितना है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया। फिर बोला आंख कितनी है आपकी, ऑक्सीजन एटम कितना है दो बोलो, दो 2 × इन सबको बेटा वो बॉटल में भरेगा तो कितना वॉल्यूम आएगा, 22.4 लीटर। ये दिमाग में गया गया, हाँ सर। बोलो रे। अब आगे बढ़ते हैं, तो यही सब यहाँ पे दिया है, देख रहा है क्या, ये देख, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड का दिया था, दिखा क्या, 44, कार्बन डाइऑक्साइड इतना, कार्बन कितना था, 1 × 6,
ऑक्सीजन कितना था 2 इंटू वॉल्यूम कितना होगा। तो बेसिकली आपको क्या कहना चाहता हो, इस पे सम्स कैसे आएंगे। आपको बेटा है ना ये दिया रहेगा, मोल, मास, नंबर और वॉल्यूम। मोल, मास, नंबर एंड वॉल्यूम। क्लियर है। इसी पे सम्स आएंगे। अभी यस आप बोलेगा सर हमको कैसे पता चलेगा, अरे तो सम पढ़ के पता चलेगा। सपोज बेटा मैंने अगर आपको ऐसा बोला, अभी ध्यान से देखो, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, ये सब में क्या लिखा है बोलो बेटा, बोलो ना। अरे कोई तो रीड करो, नंबर ऑफ मोल्स इन 4 ग्राम हाइड्रोजन। 4 ग्राम हाइड्रोजन। तो अभी तुमको अभी इतना सम पढ़ के समझ में नहीं आता है। यहाँ पे क्या पूछा है, मोल, और यहाँ पे क्या पूछा है, ग्राम में हम लोग क्या मेजर करते हैं, मास। तो मैं कौन सा रिलेशन लूंगा। मोल और मास। देख बेटा ये 4 है ना, एग्जाम में आपको कैसा सम आएगा मैंने बताया भी था, 10 बार बताया है। पहला क्या आएगा, मोल और मास। दूसरा मोल और नंबर। तीसरा मोल और वॉल्यूम। नेक्स्ट क्या पूछेंगे, बोलो, मास और नंबर, मास मास और नंबर, वॉल्यूम। मास वॉल्यूम, लास्ट वाला क्या आएगा, नंबर वॉल्यूम। नंबर और वॉल्यूम। इजी। यस। तो अभी ये सब मैंने पढ़ा भाई, मेरे को क्या मिला यहाँ पर देखो ना, क्या मिला। यहाँ पे मुझे क्या दिया है, अरे बोलो ना, मोल और यहाँ पे मास। तो मैं क्या लिखूंगा, मोल और मास। अब आपको याद रखने का, 1 मोल किसी का भी होगा तो कितना होता है, 1 मोल, RMM। RMM। हाँ तो हाइड्रोजन कभी भी याद रखना, हाइड्रोजन है मतलब RMM ऑफ H2। तो कितना होगा, 2H है, तो 2H मतलब 2 × 1, ये दिया रहेगा। तो 1 मोल होता तो कितना होता, बोलो, 2 ग्राम। 2 ग्राम्स। अभी पूछा कितना है, 4 ग्राम। तो जब 4 ग्राम 2 होगा मोल्स। तो कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो ये भी डबल हो रहा है तो ये भी डबल होगा कि नहीं, बोलो। हाँ सर, 2 तो हाँ देख बेटा, सर। ये देख, मोल लिखा, मास लिखा, समझा, दिखाई दे रहा है, 2 मोल्स। ओरली भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट सम, यहाँ पे क्या पूछा है बोलो बेटा, मास और मोल दिया है, तो वापस वही मोल और मास। 1 मोल होता तो RMM होता हाइड्रोजन का, तो 2 होता, पता है ना बेटा, हाइड्रोजन का 2 होता है। अभी पूछा कितना मोल है, तो 1.5 मोल होगा तो कितना, तो कितना हो जाएगा बोलो बेटा, 3 ग्राम्स। 3 इजी। ग्राम। यस सर। यस सर। ये ही दिया है यहाँ पर, देखो बेटा, देखा ये वाला लेफ्ट हैंड साइड देखो। अभी ये वाला सब में क्या दिया है पढ़ो, क्या पूछा है यहाँ पर, व्हाट वाज फाइंड नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स इन एंड मोल। तो अपने को क्या दिया है, मोल एंड नंबर। तो आप मेरे को बताओ पहले, सो कोई 1 भी मोल में 1 मोल होता तो 6.023 into 10 raised to 6.023 इंटू 10⁻23 होता। ये लोग ने कितना पूछा है, 2 moles, so 2 into तो 6.023 2 होएगा तो कितना, कितना इजी है बोलो, sir. बोलो ना। तो ये देखो बेटा, 1 मोल होता तो इतना, 2 होगा तो कितना, इजी। नेक्स्ट। सर ये 2 into में छोड़ देने का ना। हाँ छोड़ देने का चलता है बेटा ऐसा। अब बेटा इधर पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, वॉल्यूम, क्या लिखा है, सो वॉल्यूम और मास। वॉल्यूम और मास, और एसटीपी दिया हुआ है। तो हम लोग कौन सा रिलेशन लेंगे बोलो, अरे बेटा स्टैंडर्ड वॉल्यूम और रिलेशन है हम मास। लोग। मास और कौन सा वाला लेंगे बोलो बेटा, वॉल्यूम। वॉल्यूम। मास मतलब कोई भी चीज का RMM होता तो कितना वॉल्यूम होता, 22.4 liters। वेरी गुड। RMM किसका, CO2 का। हम लोग ढूंढ सकते हैं ना बेटा, एक C 44। है, 2 O है, तो ये करेंगे तो 44 आएगा। 44 होता। आर यू गेटिंग इट और नॉट, टेल मी। यस सर। ये देख बेटा, मॉलिक्यूलर वेट और देख मास और वॉल्यूम लिया कि नहीं। तो देख 44 होता तो कितना होता था, 22.4। अभी पूछा कितना है, 22, तो 11.2 22। होएगा। हाँ, इजी, यस सर। बोलो,
अब आप बोलोगे सर एग्जाम में सम कैसे आएंगे, तो देखो ये लो, ये कभी सम हमने नहीं किया है। आ जाओ। तो बेसिकली वो चार चीज आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। जनरली ये देखो ऐसे एमसीक्यू में आएंगे, वो लोग आपको ऐसा दे देंगे, ये ले पाए, यहाँ पे दिया है, ये आपको पढ़ा अच्छे से पढ़ने को हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अब यहाँ पे देख क्या लिखा है, पढ़ो ना। इसमें से किसका वजन सबसे कम होएगा, लिस्ट पूछा है। क्या पूछा है? ये दिखेगा तुमको नहीं ना? रेड कैसा दिखेगा? रेड भी अच्छा नहीं दिख रहा, ये वाला। या दिस इज लुकिंग गुड। चलो, क्या दिया है बोलो? इसमें से चारों में से किसका वजन कम होएगा, तो मुझे सबका क्या ढूंढने का है, वजन ढूंढने का है, वेट। पहला वाला देखते हैं न जाने मन क्या दिया है। टू, अरे यार ये कलर मजा नहीं आ रहा है, कौन सा कलर लू यार? ओ व्हाइट का, माय गॉड। तो 2 ग्राम एटम्स। चलो, ये ग्राम एटम का क्या फॉर्मूला था बोलो? अरे पब्लिक कोई बोलेगा कि वो सब मर गए क्या? गिवन मास अपॉन ले भाई ले, मैं यहाँ पे ना ऐसा रंगोली कर देता तो तुमको क्या अच्छे से मजा आएगा। अभी अभी अपन अलग अलग कलर कलर खेल सकते हैं। चलो, पहला ग्राम एटम। अरे बुआ काय सांगितलं आहे, ग्राम एटम मंडली। 2 ग्राम एटम का वेट कितना? ग्राम एटम का फॉर्मूला क्या था बोलो? गिवन मास अपॉन आरएमएम। गिवन मास अपॉन आरएमएम। आरएम क्या एटम दिया है ना, आरएमएम कहाँ पे आएगा बे? आरएम आरएम। आरएम। रामबा हो। ओ ओ रामबा, राम है भाई। ग्राम एटम कितना दिया है? 2। गिवन मास नहीं दिया है रे, लेकिन नाइट्रोजन का अकेले का मास कितना दिया है देखो ना। तो गिवन मास कितना हो जाएगा? 28। तो ये वाला मैंने कर दिया। 2 × 14 तो कितना हो जाएगा? 28। अब क्या दिया है? 1 मोल ऑफ सिल्वर। मोल, मोल दिया, और अपने को क्या ढूंढने का? मास, सिल्वर का मास दिया। देख बेटा, 1 मोल, तो रिलेशन कौन सा यूज करेंगे? मोल और मास। हाँ सर। 1 मोल होता है तो आरएम कितना है बोलो? 108। तो इतना मिल गया ना इसका, 1 मोल का कितना है? 108। 108। बस हो गया, इसको कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। सी पार्ट में क्या दिया है? 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। ये भाई लीटर दिया और मास, कौन सा रिलेशन में यूज करूंगा? मास मास और और लीटर। वॉल्यूम। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था? आरएमएम होता तो कितना वॉल्यूम होता? 22.4। तो 22.4 मतलब आरएमएम। ये ऑक्सीजन गैस बोला है, तो आरएमएम किसका? O2 का। O2 मतलब कितना होता 32। है? 2 × O। 2 × O मतलब कितना होता है? 2 × 16। 2 × 16 कितना होता है? 32। मतलब 22.4 का कितना है? 32। 32। लास्ट में क्या पूछेला है भाई? टी फॉर डॉग, कुतरा। वाह वाह। 12 भी होएगा। हाँ, तो अभी यहाँ पे लेकिन पहला देखते हैं ना, नंबर दिया है तो मास और नंबर। ये बाबा, ये लोग ने यहाँ पे एटम दिया है, तो मास, एक कार्बन एटम का कितना होता है बोलो? एक कार्बन एटम। 12 12। हाँ, तो एक कार्बन एटम का मतलब यहाँ पे मैं क्या लिखता था? मास ना, तो 1 कार्बन एटम ही था समझ बेटा, 1 कार्बन ही दिया है ना। 1 कार्बन का कितना होता है? 12। और वो कितना नंबर करता बोलो बेटा? 6.02 10^3। तो वही दिया है ना बेटा अपने को, तभी सबका वेट देख ले अपने को। यहाँ पे आंसर कितना आया? 12। वो लोग ने बोला कि इसका सबसे कमती आया है। इसका कितना आया मेरे को? पहले वाले का 28। तो डी का ही होगा। ये बी का 108, इसका 32, इसका कितना आया? 12। तो आंसर कार्बन क्या का ही होगा? आएगा। डी फॉर डॉग, कुतरा। वाह वाह। सबसे कम उससे का आया कि नहीं बोलो? यस सर। फिर देखो ऐसा भी सम आएगा बेटा। किधर पे तो मैंने दिया का था रे बाबा। आपको अभी खाली वो रिलेशन दिमाग में बैठाना, वो 4 जन को लेके गेम करने का है बेटा पूरा। समझा कि नहीं? कितना चमन चिंदी है। ओ यो ब्रो, देखो ना। नो, नो, इसमें नहीं है। चलो ये वाला मैं देता, ये स्टोइक्योमेट्री डाल दिया बेटा लोगों ने, स्टोइक्यू कर दिया। देखो स्टोइक्यू वाला ही सम इसमें बता देता। ये ले बाबा, देख सामने सामने देखो रे बाबा, फटाफट क्या दिए है बोलो?
कितना दिया है बोलो। ये देख, इतना मैंने इक्वेशन दिया, इतना दिया है। वो लोग ने क्या बोला, इफ 168 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, कैलकुलेट क्या बोला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट ही ढूंढने का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के आगे कोई नंबर है, पहला देख लो। अरे कोई नंबर है क्या? 2. हाँ, 2। तो 2 सोडियम बाइकार्बोनेट। और ढूंढने को भी क्या बोला है, सोडियम बाइकार्बोनेट ही। मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ, तो यहाँ पे भी 2 ही लिख दो, वापिस सोडियम बाइकार्बोनेट ही लिखा। यहाँ पे क्या दिया है वो लोग ने, सम में क्या दिया है बोलो, मास दिया है। तो भी आप यहाँ, और यहाँ पे पूछा क्या है तेरे को पहले में, मोल। तो इस यहाँ पे तुम लोग क्या डालने वाले हो, मोल। यहाँ पे क्या डालोगे, आर मास। एम एम। अभी दोनों के आगे दो दो ही है ना, तो कोई टेंशन नहीं है बेटा। तो 2 × RMM होता तो 2 × मोल्स होता। मोल कितना होता है कोई भी चीज का बोलो। अरे RMM कितना मोल्स को करस्पॉन्ड करता है बोलो बेटा, 1 मोल ना। अरे 1 मोल और आरएमएम कितना होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का, एक सोडियम का कितना होता है 23, एच का कितना है 1, कार्बन का कितना है 12, O3 तो 48, ऐड कर पे ये कितना हो गया 60, 60 और ये 84, तो 2 × 84 होता, तो कितना मोल होता, 2 × 1। ये 2 क्यों आया बाहर, बिकॉज ये बैलेंसिंग में ये जो नंबर आएगा वो लिखना पड़ेगा। अब अपने को कितना दिया है, अरे हमें दिया कितना है, अरे 168 ग्राम। हाँ, तो 160, अभी यहाँ पे ले 168 होता तो कितना मोल होता, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, सर वही है, वही है 2 ही मतलब क्या, होगा, 2 ही होगा। 2 हाँ। ही होगा। हाँ तो 2 मोल हम्म, बस, बराबर। नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट क्या मास ऑफ पूछा है, सोडियम कार्बोनेट फॉर्म। मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो अभी यहाँ पे देखने का, लेकिन सब में क्या दिया, यहाँ पर 2 है और सोडियम कार्बोनेट के आगे कोई नंबर नहीं है, तो हम लोग पहले यहाँ पे क्या लेंगे, 2 × सोडियम 2 बाइकार्बोनेट, और यहाँ पे खाली क्या लिखेंगे, 1 मतलब सोडियम कार्बोनेट। हाँ बस, इसके आगे कुछ नहीं है ना। अभी इसका भी क्या दिया है, मास, और इसका भी क्या पूछा है, मास, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 × 2 आर एम RMM। एम, दिस विल बी व्हाट, RMM। RMM अभी हम लोग ने ढूंढा था, इसका कितना आया था 84। सोडियम कार्बोनेट का ढूंढ ले कितना होगा, 23 कितना हो जाएगा, 46, 46 और 12, 46 और 60, वो 106। अभी पूछा कितना है, देयरफॉर अगर 168 होएगा 160 होएगा। तो कितना होगा, तो ये कट हो जाएगा ना बेटा, 106। तो 106। समझा क्या, यस सर। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी, बोलो रे। अभी एवीएम के पेपर में इससे रिलेटेड कुछ है तो मैं तुमको बता देता फटाफट, आ जाओ ना एवीएम बेबी। ये रहा आपके सामने, कितना इजी है, क्या बोला है, पढ़ो ना अच्छे से, कैलकुलेट वॉल्यूम। देखो यहाँ पे क्या दिया, नंबर दिया, और यहाँ पे क्या बोला है, वॉल्यूम, तो कौन सा रिलेशन में यूज करेगा, वॉल्यूम और नंबर हाँ, का। नंबर और वॉल्यूम का रिलेशन यूज करना है। ये भाई 6.023 सर इंटू 22.4 ही आएगा। 23 होता है, तो 22.4 लीटर होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो कितना दिया है वो लोग ने, इंटू 10⁻21 होगा तो कितना, तो देख बेटा ये डिवाइड बाय 100 हो रहा है, तो ये भी डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, समझा कि नहीं। तो आंसर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.224। इजी। यस सर। अरे बोलो रे। यस सर। अच्छा अभी क्या बोला है, वेपर डेंसिटी गैस दिया है, और क्या बोला है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 24 ग्राम ऑफ गैस। वे वॉल्यूम अपने को ढूंढने का है। तो सर 16 में 22.4 होता है। अबे रुक जा बेटा, शांति, पहला वेपर डेंसिटी ऑफ गैस है, तो ये गैस का तू क्या ढूंढेगा बोल, RMM। हाँ तो RMM ढूंढ ले। 16। RMM इज इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी, तो 2 × 8 तो कितना हो जाएगा 60। तो अभी RMM मिल गया, तो तेरे को अभी देख क्या बोला है, मास, और यहाँ पे क्या पूछा है, वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो अभी हम लोग ने मास में क्या पढ़ा था, RMM होता,
तो कितना वॉल्यूम होता? 22.4 RMM 22.4 कितना मिला मेरे को? 16 16 16 होता तो 22.4। अभी वो लोग ने हाँ, पूछा कितना है? 24 24 होएगा तो कितना? समझ में आ रहा है? तो 24 अपॉन इंटू 22.4 अपॉन 16, 8 2 जार 8 3 जार 3/2, ये कट होके क्या हो जाएगा? 11.2। तो मल्टीप्लाई करेंगे 33.6 33.6 लीटर्स। इजी। यस सर एप्लीकेशन समझ में आया क्या? बोलो ना। कैसे करने का आएगा कि नहीं? देखिए एमसीक्यू में भी कहाँ दिखाई देगा। देखो, आवो गधेड़ो की शक्ल दिख रही है कहाँ पर? आवो गधेड़ो। ये ईवीएम वेस्ट का पेपर है हाँ बेटा। ईस्ट वालों, वेस्ट का पेपर है ये। उई अम्मा, ये ले 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो किसका पूछा है? मॉलिक्यूल का पूछा है। किसका पूछा है? ये 2 ग्राम हाइड्रोजन होता तो कितना होता बोलो? ये 2 ग्राम करस्पॉन्ड मोलिकुलर मास है ना, तो कितना होता? 6.023 इंटू 10⁻²⁵। वो ऑक्सीजन का भी कितना दिया है? 32 है। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होता तो भी कितना होता? अरे मोलिकुलर मास हाँ ऑलवेज। 1:1 अब इन दोनों का रेशियो लेगा, इन दोनों का रेशियो लेगा तो क्या मिलेगा? 1:1। 1:1 कितना इजी था बोलो बेटा? समझा कि नहीं? हाँ सर यहां तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? नहीं सर और देख, ये मस्त क्वेश्चन दिया। अरे बाबा, दो गैस का वेपर डेंसिटी का रेशियो कितना है रे? 1:3। तो मॉलिक्यूलर मास का रेशियो कितना होगा? चल बेटा, इसका बेटा ये 2 1:3 है ना। चलिए गैस एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया। इसका मोलार मास कितना आएगा बोलो? मोलार मास का फॉर्मूला क्या होता है बोल? 2 आएगा 2 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो राइट 2 ना हो बेटा? जाएगा हाँ इसका भी कितना होगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अभी हाँ इसका सर कितना दिया है? 2, तो 2 हो गया। 1:3 आएगा इसका 2 इंटू 3 तो कितना आएगा? 6। तो भी रेशियो कितना आएगा? पर वन सर 2:6 1:3 होता है तो 1:3 आएगा ना भाई मेरे। हाँ तो ठीक है ओके सर बिछेंगे। ये ले, खुश? ठीक है, अब समझा? यस सर चलो अभी ये तेरा, इसमें भी बेटा ये देख बेटा, ये वाला ये भी इसी से रिलेटेड है बेटा। देख अभी ये वाला, ये स्टोइक्योमेट्री है, ये मोल ही अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, और कुछ नया नहीं कर रहे हैं। स्टोइक्योमेट्री में खाली नंबर यूज कर देने का बेटा। क्या लिखा है? देख भाई, अपन ने इतना हाइड्रोजन सल्फाइड जलाया, 12.8 ग्राम ऑफ सल्फर को जलाया, और क्या पूछा है तेरे को? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। तो तू क्या क्या लेगा इसमें से? तेरे को क्या क्या बोला है बोल? अबे बोलना। हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड को सेलेक्ट कर। और क्या हाँ दिया है सर बोल बेटा? सल्फर मास डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड तो दोनों का रेशियो सेम ही है ना भाई? हाँ सर अच्छा, इसका मास दिया है और इसका क्या पूछा है? वॉल्यूम। तो यहाँ पे तू क्या लिखता? वॉल्यूम। 2 × यहाँ पे 22.4 मास। तो वॉल्यूम कितना होता? 22.4। 4 और SO2 का मास कितना है? ढूंढ सकते कि नहीं? 64 64। अब पूछा कितना है भाई? ये 12.8। प्लीज अभी ये जो लिखते हैं ना, उसके आगे ये 2 मल्टीप्लाई नहीं करना है बेटा। तो 12.8 होता तो कितना? बोलो। तो 2 × 22.4 इंटू 12.8 अपॉन 2 × 64। 2 कुड़ुक कुड़ुक कैंसल। फिर ये 128 और ये कट हो जाता है कि नहीं बोल बेटा? हाँ सर 1 और ये 0.2 नहीं, 1 नहीं, ये मल्टीप्लाई तो बाय 10। 0.2 होएगा ना हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? अबे 128/64 करना भाई मेरे। हाँ तो 0.2 होगा ना क्योंकि वो 2 12.8 है और नीचे 10 आएगा, हाँ तो 0.2। तो 0.2 इंटू 22.4। 4.48 हम्म। हो गया। तो बेटा आज हम लोग ने बेटा ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म किया। आज मैंने क्या क्या कराया तुमको? बोलो। परसेंटेज, फिर बाद में एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर और वेपर डेंसिटी, फिर क्या कराया बोलो बेटा? आवोगाड्रो और स्टोइक्योमेट्री,
क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछो, किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो। समझा? बोलो ना। हाँ सर। तो कल मैं क्या कराने वाला हूं? इसी का क्या करेंगे बेटा? गे-लुसेक्स लॉ और उसके सम्स। ठीक है, चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय टुमारो सर। सेम टाइम 9:30 PM। बाय बाय Bye, सर। sir. Thank you so much, sir. बाय बाय। मेरे पे